Friends, today we are starting with chapter 2, that is components of food. In this chapter we will learn about nutrients and nutrition, food groups, nutrients of food, balanced diet, deficiency diseases, undernutrition, malnutrition and obesity. Gear up. Look at the picture of green vegetables and fruits. Now in this picture you can see many vegetables and fruits over here, and these are obtained from different parts of the plant. These can be the root part, stem part, leaves part or fruit part, and some are also the flower part of the plant. First of all, we are reading about nutrients and nutrition. You know that food is essential to stay alive. You also know that food is obtained both from plants and animals and then cooked by adding some ingredients. The food so obtained has a particular importance because it contains some chemical substances. So about nutrients we have read about in the last chapter also, and also about the ingredients. Now in this chapter we will read in detail about all the nutrients and which nutrition they provide us. Food is a mixture of various chemical substances which we need for energy, to grow and to remain healthy. These chemical substances are called nutrients of food. Taking these nutrients in the form of food is called nutrition. फूड में कुछ केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जो हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं और हमें हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं. इन केमिकल सब्सटेंसेस को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. सो व्हाट इज इट्स डेफिनेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स? The chemical substances present in the food. Now taking these nutrients in the form of food is called nutrition. इन न्यूट्रिएंट्स को जब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, जब हम फूड से इन्हें अपनी बॉडी में ले जाते हैं, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज न्यूट्रिशन. नाउ वी विल रीड अबाउट द डिफरेंट फूड ग्रुप्स. The major nutrients in our food are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. Underline this. The major nutrient in our food are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. The quantity of these nutrients may vary in different food items. These food items may be rich in one particular nutrient but do contain other nutrients also. Based on the richness of nutrients, the food items are classified into the following three food groups. जो भी हम फूड लेते हैं उनमें या तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं या इनमें से एक या दो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ फूड आइटम्स हैं जिससे हमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलता. Now we are reading about the three main food groups in which these are divided. First one, energy giving food. Now energy giving food. These foods are rich in carbohydrates and fats. They provide energy to the body. Second one, bodybuilding food. These foods are rich in proteins. Okay, they help the body grow and repair the damaged cells and tissues. Third one, protective food. These are rich in vitamins and minerals. Underline this. They protect the body against diseases and control body metabolism. So these are the three groups. First one में कौन से आते हैं आपके? एनर्जी गिविंग फूड. एनर्जी गिविंग फूड प्रेजेंट होते हैं जो फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. नाउ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो न्यूट्रिएंट्स हैं, दीज प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं जिससे हम अपने डे बाय डे के काम करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड जो प्रोटीन्स में रिच होते हैं और ये हमारी बॉडी को ग्रो होने में, लाइक आपकी बॉडी बढ़ रही है, उसके सेल्स बढ़ रहे हैं, बोन्स बढ़ रही हैं, उनका साइज़ बड़ा हो रहा है और सेल्स और टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं. प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड एज द नेम स्टेट्स, ये हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ से और हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करते हैं. जो हमारे बॉडी के प्रोसेस चलते हैं उनको भी ये कंट्रोल करते हैं. नाउ न्यू वर्ड विच यू हैव रेड. फर्स्ट वन इज़ मेटाबॉलिज्म. Various life processes taking place in the body such as respiration, digestion etc. हमारी बॉडी में बहुत सारे
केमिकल रिएक्शंस चलती हैं जिसमें रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है. सो इन ऑल लाइफ प्रोसेसेस दीज आर नोन एज मेटाबॉलिज्म. रफेज द फाइब्रस पार्ट ऑफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट वन, डाइटरी फाइबर एंड वाटर. दिस इज़ ऑल्सो न्यूट्रिएंट बट इनमें न्यूट्रिशन वैल्यूज़ कम होती है, बट इवन देन these are needed by our body. Dietary fibers form the roughage part of our food. They help in the movement of all in the intestine. Water helps in absorbing nutrients from the food and removing waste from the body. This is the function of the water. Now dietary fibers or roughage, this is the fiber part of the fruit or vegetable. ना इन फाइबर से हमें एज इट इज़ कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी के डाइजेशन, फूड के डाइजेशन में हमें हेल्प करते हैं. वाटर हेल्प्स. वाटर का क्या काम है हमारी बॉडी में? जो भी हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, सो उनको वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. और ऑल्सो वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करने में भी वाटर हेल्प करता है. Now we are having table 2.1, nutrient sources and functions of various food groups. Now first one is energy giving food. Energy giving food में कौन से आते हैं हमारे? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. सोर्सेज क्या है इसके? सीरियल्स, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, हनी, शुगर, जैगरी. जैगरी मीन्स गुड़. घी, ऑयल, बटर, एनिमल फैट्स, जिससे हमें फैट्स मिलता है. एंड इनका फंक्शन क्या है? ये प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं. सेकेंड, बॉडी बिल्डिंग फूड, जिसमें आपके क्या आते हैं? प्रोटीन्स, मिल्क, पल्सेस, मीट, फिश, एग्स, चीज़ एंड सोयाबीन इसके सोर्सेज हैं. और इसका फंक्शन क्या है हमारा? हेल्प बिल्ड एंड रिपेयर डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज़. हमारी बॉडी में सेल्स और टिश्यूज़ को बनने में हेल्प करते हैं, और समटाइम कोई डैमेज हो जाता है तो उसको भी ये रिपेयर करने में हेल्प करते हैं. थर्ड वन आर द प्रोटेक्टिव फूड, जिसमें आपके आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स. विटामिन्स वी गेट फ्रॉम ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. मिनरल्स वी गेट फ्रॉम वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, फिश, एग्स एंड पल्सेस. These are essential for chemical reactions occurring inside the cells. Next one, dietary fiber, जिसमें आपके आते हैं roughage. its sources are whole grains. Whole grains means साबुत दालें, जैसे साबुत मूंग की दाल, साबुत चने की दाल, and pulses. Then fresh fruits, green leafy vegetable. Keep the intestine clean and prevent constipation. हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन रखते हैं, और कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है उसे ठीक करते हैं. वाटर वी गेट वाटर फ्रॉम एज इट इज़ वाटर, मिल्क, टी, कुक्ड फूड, वेजिटेबल एंड फ्रेश फूड्स. वाटर का फंक्शन क्या है? हेल्प्स ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी, हेल्प्स इन डाइजेशन एंड वेस्ट रिमूवल, मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी. Now next we are reading about different nutrients present in the food in detail. First of all we are reading about the carbohydrates. Now carbohydrates के 3 types हैं. First one is sugar, second starch and third is cellulose. Carbohydrates are main energy giving nutrients of the food. क्या होते हैं ये? इनसे हमें एनर्जी मिलती है. This energy is utilized to perform various day-to-day activities of life. Carbohydrates are formed in green plants during photosynthesis. Underline this. Now carbohydrates हमारी डे बाय डे की जो भी रूटीन होती है, लाइक वी स्टडी, वी राइट, आप दौड़ते हो, कोई भी काम करते हो, कोई चीज़ उठाते हो, या और भी कोई भी काम करते हो, उससे हमें जो एनर्जी मिलती है दैट वी गेट फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स. दीज आर इट्स एग्जाम्पल्स: rice, wheat, maize, oat, sweet potato, apple, banana. Other fruits, glucose, beans, milk, etc. rich sources of carbohydrates. You can see the picture of here. This is the fruits picture. Then you are having the table sugar, sugar चीनी जो है, and the milk. First one, sugars. First type of carbohydrates. Now sugars are simple carbohydrates having sweet taste. कैसे होते हैं ये? simple carbohydrates में आते हैं. These are soluble in water. Glucose, fructose, sucrose and lactose are examples of
sugar. Glucose is the simplest sugar. Table sugar which is added to milk, tea or coffee is actually sucrose. So sucrose का example क्या है आपका? Table sugar. Second is starch. Starch is a complex carbohydrate. Okay, so इसको digest करना इतना easy नहीं होता है जैसे sugar को होता है. It is tasteless and odorless. Tasteless means इसका taste नहीं होता. Odorless, it does not have any smell. White powder. Major sources of starch are wheat, maize, rice and potatoes. These are its different examples. Next one is a cellulose. Cellulose is also a complex carbohydrate. Like starch, cellulose is also a tasteless and white powdery substance. It occurs in the cell wall of the plant cells. Wood, cotton, jute in the form of fibers. सेल्यूलोज कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल की सेल वॉल में, वुड में, कॉटन एंड जूट. सेल्यूलोज को ह्यूमन बींग्स डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, बट कुछ एनिमल्स हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, जैसे काऊ, बफलो, जो ये लीव्स वगैरह खाते हैं वो इसको इजीली डाइजेस्ट कर देते हैं. बट ह्यूमन बींग्स में वो एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते जिससे सेल्यूलोज डाइजेस्ट हो जाता है. दैट इज़ वाई हम लोग रफ़े जो फाइबर है उसको भी हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं. फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ ग्लूकोज इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी. Even a temporary shortage of glucose in blood can severely affect the functioning of brain. ग्लूकोज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है एंड ऑल्सो समटाइम क्या होता है, कोई बच्चा फेंट हो जाता है ग्राउंड में या कहीं बाहर से आते हैं हम, तो दैट टाइम वी टेक ग्लूकोज बिकॉज इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट मतलब उसी टाइम एनर्जी हमें लेने के लिए ग्लूकोज लेना पड़ता है. लीवर सेल्स कन्वर्ट एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन. अंडरलाइन दिस. Glycogen is stored in the liver cells, okay, and in the muscle cells to be used when needed by the body. Glycogen हमारी बॉडी में लीवर में और मसल सेल में प्रेजेंट होता है, स्टोर रहता है, और कई बार हमें बॉडी को ज़्यादा जैसे एनर्जी की ज़रूरत होती है, दैट टाइम आवर एनर्जी कैन एब्जॉर्ब इट फ्रॉम देयर. Let us perform some activities to test the presence of sugar in our food. Now first one activity I will tell you like what we have to do here. इसमें हमने क्या करना है, कोई भी फूड सैंपल लेना है, उसमें हमने पता करना है कि उसमें शुगर प्रेजेंट है या नहीं. फिर उसको मोर्टर और पेस्टल मतलब कोई उसको पीस देना है मोर्टर और पेस्टल में डाल के. आफ्टर दैट थोड़ा सा उसका पेस्ट बना लेना है वाटर डाल के, और उसमें हम when we will put Benedict solution in this, okay, Benedict solution डालकर उसको थोड़ा हीट करना है. इससे क्या होगा, if red and orange color precipitate appears the given food sample contains sugar. अगर उसमें ऑरेंज, रेड और ऑरेंज कलर के पार्टिकल्स उसमें अपीयर हो जाते हैं, दैट मीन्स उसमें शुगर प्रेजेंट है. एक्टिविटी 2, टू टेस्ट द फूड सैंपल फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. स्टार्च के प्रेजेंस हम कैसे कर सकते हैं पता करने के लिए, इसमें भी हमने क्या करना है, फूड सैंपल लेना है, उसका पेस्ट बनाना है, उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके पहले उसे पीसना है, उसमें वाटर ऐड करना है. आफ्टर दैट उसको किसी भी वाइट टाइल पर, जैसे यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर, उसको वाइट टाइल पर रखना है और उसमें आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डालनी है. तब अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो दैट मीन्स जो फूड सैंपल हमें दिया गया है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है. नाउ दिस वी कैन डू ईजिली विद बॉयल्ड राइस एंड पोटैटो को कट करके और बॉयल्ड राइस में अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा. नाउ दीज 2 एक्टिविटीज़ वी विल डू इन द स्कूल लैबोरेटरी. नेक्स्ट nutrient that we are reading is fats. Fats are greasy food. Greasy means oily food. Oil present होता है इनमें. They are also energy giving nutrients and are obtained from both plants and animals. Fats obtained from animal products such as egg yolk, milk, meat, fish, curd, liver oil and whole dairy products like milk, cheese, ghee, butter, milk cream and ice cream are known as animal fats. These fats are saturated fats and are solid at room temperature. Underline these 2 lines.
नाउ फैट्स, नाउ यू कैन सी द पिक्चर्स ओवर हियर. इसमें जो फैट्स दिए गए हैं लाइक घी, बटर, चीज़, मीट, फिश, एग yolk, दीज ऑल आर सोर्सेज ऑफ एनिमल फैट्स. और ये सैचुरेटेड फैट्स भी इन्हों कहा जाता है. सैचुरेटेड फैट्स का मतलब क्या है, इनके जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं, जिसके कारण ये रूम टेम्परेचर में भी सॉलिड रहते हैं. जैसे अगर आप बटर जैसे रख देते हो बाहर तो भी वो सॉलिड रहता है. चीज़ ऑल्सो रिमेन सॉलिड. नेक्स्ट टाइप ऑफ फैट्स आर अनसैचुरेटेड फैट्स, जिन्हें वेजिटेबल फैट्स और प्लांट फैट्स भी कहा जाता है. फैट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट प्रोडक्ट्स सच एज ड्राई फ्रूट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, cashew nuts, groundnuts. Oil obtained from coconut, groundnut, sunflower and mustard etc. are vegetable fats. These fats are unsaturated fats and are usually liquid at room temperature. Unsaturated means इसमें जो molecules हैं they are not tightly packed. ओके और ये जनरली लिक्विड होती हैं रूम टेम्परेचर में. नाउ दीज वेजिटेबल फैट्स कहाँ से मिलते हैं? आलमंड्स, walnuts, cashew nuts, groundnuts etc. and mustard oil. Now this is in the liquid form. इनसे भी जो ऑयल मिलता है जैसे आलमंड ऑयल, वॉलनट, कैशू नट एंड ग्राउंडनट से भी ऑयल को प्रोड्यूस किया जाता है. एंड दीज कम अंडर अनसैचुरेटेड फैट्स. Fats are essential for our body, but too much of consumption of fat-rich fats may make a person overweight and susceptible to many diseases. It may lead to a condition known as obesity. फैट्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट है, लेकिन उसको ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज़ पर्सन का क्या हो जाता है, वेट बढ़ जाता है और उसमें मोटापा हो जाता है. ओबेसिटी मीन्स मोटापा होना. एंड कोई भी पर्सन जब ओबीज हो जाता है तो उसको काफ़ी डिजीज़ेस हो सकती हैं. सो दिस इज़ द न्यू वर्ड यू हैव रेड हियर, ओबेसिटी, a condition of a person gaining too much of weight. Now next, functions of fats. Fats are rich sources of energy. Each gram of a fat gives more than twice the energy given by the same quantity of a carbohydrate. Underline this. Means same amount of fat और सेम अमाउंट ऑफ हम कार्बोहाइड्रेट लें तो फैट से हमें डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है. फैट्स आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी एंड आर यूज्ड व्हेन एवर आवर बॉडी नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी. फैट स्टोर्ड अंडर द स्किन एक्ट एज एन इंसुलेटर विच प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी इन कोल्ड वेदर. इट डज हेल्प्स टू कीप द बॉडी वार्म. फैट्स हमारी बॉडी में स्टोर होते रहते हैं, स्किन में जैसे हमारे स्टोर होते हैं, और ये एक तरह से इंसुलेटर का काम करते हैं और हमारी बॉडी की हीट को कंजर्व रखते हैं. फैट्स ऑल्सो एक्ट एज अ कुशन फॉर द बॉडी ऑर्गन्स, जिससे हमारे बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज नहीं होता. फैट्स आर असेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स ए एंड डी. नॉलेज डेस्क. Animal fats, that is ghee and butter, contain cholesterol. The cholesterol, if in excess in blood, gets deposited on the walls of blood vessels. This makes the blood vessels narrower. In such a case, the heart has to work hard to push the blood through narrow blood vessels. This leads to heart attack. इसमें क्या बताया है, जो एनिमल फैट्स जैसे घी और बटर अगर हम ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो ये हमारे ब्लड वेसल्स, जैसे ब्लड वेसल्स होते हैं आर्टरीज और वेन्स, जिसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होना लग जाता है. कोलेस्ट्रॉल उसमें कलेक्ट होगा तो क्या होगा, उनका जो पैसेज है वो छोटा हो जाएगा और उसके कारण जो ब्लड उसमें से पास होता है दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू पास थ्रू दिस नैरोअर पाथ. इस केस में क्या हो जाता है, जो हार्ट हैज़ टू वर्क हार्ड, हार्ट को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है ब्लड को पुश करने के लिए उन ब्लड वेसल्स के, एंड दिस लीड्स टू हार्ट अटैक. ऐसे पर्सन को हार्ट अटैक भी हो सकता है. सो ये अगर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, सो दैट पर्सन इज़ बीइंग ऑपरेटेड टू रिमूव द क्लॉटिंग ऑफ दैट ब्लड वेसल्स. नाउ एक्टिविटी 3. Activity 3 you can do at home. It is very easy to do. Okay, इसमें क्या है, to test the food samples for the presence of fats. Material required, you need food sample,
अ क्लीन वाइट पेपर एंड अ सोर्स ऑफ लाइट। फाइन, इसमें कोई भी आप फूड सैंपल ले सकते हो, जैसे मूंगफली के दाने ले लो, आलमंड के दाने ले सकते हो आप, काजू के दाने, ओके, काजू के सीड्स जो होते हैं वो लेके उनको आपने क्या करना है, सबसे पहले उन्हें पीसना है। रब सम क्रश्ड पीसीज ऑफ फूड ऑन अ प्लेन वाइट पेपर, let it dry. Now hold the paper against a source of light and look through the spot. Observation and conclusion: the spot on white paper formed by rubbing the food pieces is oily and light is visible through it. This means that fat is present in the food. Now इसमें हम ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं, उनको पीस के हम किसी भी वाइट पेपर में उन्हें डालेंगे और उसको प्रेस करेंगे। आफ्टर दैट यू रिमूव दोज सीड्स एंड आफ्टर दैट आप देखोगे कि उस वाइट पेपर पे ग्रीज ऑयली सा एक स्पॉट लग गया है, और जब आप उसको लाइट में देखोगे तो आप देखोगे लाइट उस ऑयली स्पॉट के बीच से पास हो जाती है। सो अगर कोई भी फूड आइटम को प्रेस करने से ऑयली स्पॉट लग जाता है वाइट पेज के ऊपर, दैट मीन्स उस फूड आइटम में फैट्स प्रेजेंट होते हैं। सम फूड आइटम्स, type of fats in them and their sources are mentioned in this table. Now name of food items: butter, butter में क्या present होता है, saturated fat, and that is a animal source. Cheese, also saturated fat, animal source. Cream, saturated fat, and this is also animal source. Mustard oil, सरसों का तेल में, unsaturated fat, plant source. Sunflower oil, unsaturated fat, and this is also plant source.